हेलो बच्चों, वेलकम टू टैप ट्यूटोरियल। माय नेम इज़ भाविका पटेल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 9th साइंस चैप्टर 13 वाई डू वी फॉल इल के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर। स्टार्ट करते हैं। स्टेट एनी टू कंडीशन फॉर गुड हेल्थ। टू कंडीशन एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ आर स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल-बीइंग, टू बेटर सराउंडिंग और एनवायरनमेंट। तो हम फिजिकल, मेंटली और सोशली अच्छे होते हैं, वेल बीइंग होते हैं, तो वो कंडीशन गुड हेल्थ के लिए होती है। और सेकंड है हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है। स्टेट एनी टू कंडीशन एसेंशियल फॉर बीइंग फ्री ऑफ डिजीज। Two conditions of essential for free of disease are personal and domestic hygiene, clean environment and surrounding. हमें हाइजेनिक फूड लेना चाहिए और अच्छे एनवायरनमेंट में रहना चाहिए। ठीक है। आगे, आर द आंसर टू द अबव क्वेश्चन नेसेसरी द सेम और डिफरेंट? वाई? द आंसर टू द अबव questions are different because a person may be free of disease but his mental, social and economical health may not be good. तो अब वो क्वेश्चन में ये कहा है कि डिफरेंट बिकॉज पर्सन मे बी फ्री ऑफ डिजीज। कोई भी व्यक्ति डिजीज से कब फ्री कहलाता है? जब वो मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली और सोशली अच्छे से गुड ना हो, तब तक वो फ्री नहीं कहलाता। ठीक है। लिस्ट एनी 3 रीजन वाई यू वुड थिंक दैट यू आर सिक एंड आउट टू सी अ डॉक्टर। इफ ओनली one of these symptoms were present, would you still go to the doctor? Why or why not? Answer है the 3 reason why one would think that he is sick: headache, cold and cough, and loose motion. This indicate that they may be disease but does not indicate that what the disease is. So one would still visit a doctor for the treatment and to know the cause of above symptoms. Even in case of single symptoms, one need to go to the doctor to get proper treatment. हमें हेडेक हुआ है, कोल्ड सर्दी या कफ हुआ है या लूज मोशन हुआ है, तो हम वो डिजीज़ के इंडिकेशन तो नहीं है, पर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं तो ठीक हो जाता है। ठीक है। वो सिंगल सिम्टम्स है। ठीक है। आगे, इन विच ऑफ फॉलोइंग केस डू यू थिंक अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन योर हेल्थ आर लाइकली टू बी मोस्ट अनप्लीजेंट? if you get jaundice, if you get lice, if you get acne. Why? Answer है in the above cases, lice and acne are acute problem of our health which can be cured in short duration, but jaundice is the disease that can have most unpleasant effect in our body as affect the most important organ of our body, example liver. This disease is chronic one. जो लाइस और एक्ने ऐसा है जो एक्यूट डिजीज़ है, शॉर्ट ड्यूरेशन में ठीक हो जाता है, पर जॉन्डिस ऐसा है जो हमारे लीवर पर इफेक्ट करता है, तो क्रोनिक जैसा है, वो लॉन्ग टाइम में ठीक होता है। ठीक है। आगे, वाई आर वी नॉर्मली एडवाइज टू टेक ब्लेंड एंड न्यूरिशिंग फूड व्हेन वी आर सिक? We are advised to take bland and nourishing food when we are sick because
our body need energy to release cell to overcome the infection, the wear and tear to body organ. The nourishing food provide to nutrient to our body that will further provide energy, make new cells. No spices in the food makes its digestion process faster, does not releasing acid in the body that can interfere in the treatment and cure. तो जब हमें हम सीख होते हैं तो हमें एनर्जी हमारी एनर्जी रिलीज़ होती है, तो हमें बहुत स्पाइसी फूड नहीं खाने चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें हाइजेनिक फूड खाने चाहिए जिससे हमारी बॉडी में जो सिकनेस है वो जल्दी से ठीक हो जाए और हमारी हेल्थ अच्छी हो जाए, ठीक है। इसलिए हमें न्यूट्रिशिंग फूड लेनी चाहिए और हमारी केयर करनी चाहिए। What are the different means by which infection disease are spread? The different means by which infection disease are spread: through air, through food and water, through contact. So first is through air. They are also called airborne disease. The air carries bacteria, virus and disease that can be caused are common cold, influenza, tuberculosis. वो ऐसे होने वाले डिजीज है। थ्रू फूड एंड वाटर, व्हेन वन ईट ड्रिंक contaminated food, water that contain bacteria, virus, worm etc. it can cause disease like cholera, typhoid, hepatitis. वो फूड एंड वाटर से होते हैं। थ्रू कॉन्टेक्ट, many disease spread contact to infected person with healthy person. Example: fungal infection, skin disease, scabbers etc. जो कॉन्टेक्ट से होते हैं, ठीक है। आगे, बाय सेक्सुअल कॉन्टेक्ट मैनी डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड। एग्जाम्पल: सिफिलिस, एड्स, वो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से होते हैं। बाय बॉडी फ्लूइड, फ्लूइड आर like blood, semen, mother milk when infected can also cause disease. Example: AIDS. ऐसा डिजीज है जो बॉडी फ्लूइड, किसी का ब्लड लेते हैं, कोई एड्स वाला पेशेंट है उसका ब्लड लेते हैं, तो जो रेसिपिएंट है उसको और डोनर को तो होता है, रेसिपिएंट को भी हो जाता है। वेक्टर्स, the organism that spread a disease by carrying pathogen from one place to another is called vector. Example: mosquito are vector that carry pathogen like protozoa. What precaution can you take your school to reduce the incidence of infectious disease? आंसर है द प्रिकॉशन डेट वन कैन टेक टू स्कूल टू रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज आर: ए, बाय यूजिंग हैंकरचीफ वाइल कफिंग, स्नीजिंग। हमें हैंकरचीफ यूज़ करना चाहिए जब कफ होता है तो, स्नीजिंग करते हैं तो। वॉशिंग हैंड बिफोर ईटिंग टिफ़िन, टिफ़िन खाने से पहले हैंड वॉश करने चाहिए। स्टेइंग एट होम if any suffer from infectious disease, कोई भी infectious disease हो तो हमें घर रह के रेस्ट करना चाहिए। गेटिंग वैक्सीनेटेड बिफोर द इन्फेक्शन इफेक्ट, तो हमें वैक्सीन लेनी चाहिए। कीपिंग द स्कूल सराउंडिंग क्लीन, चेकिंग फॉर स्टेगनेंट वाटर, हमारे स्कूल के आसपास क्लीन होना चाहिए, वाटर भी क्लीन होना चाहिए, ठीक है। आगे, व्हाट इज इम्यूनाइजेशन? व्हेन द बॉडी अटेन इम्यूनिटी अगेंस्ट एनी डिजीज ड्यू टू वैक्सीनेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। बॉडी को डिजीज के सामने जब इम्यूनिटी होनी चाहिए, हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है तो हमें कोई डिजीज़ नहीं होता है। इसके लिए जो वैक्सीन लेते हैं तो वो वैक्सीनेशन को की प्रोसेस को हम इम्यूनाइजेशन कहते हैं। व्हाट आर द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम
available at the nearest health center in your locality. Which of these diseases are the major health problem in your area? The immunization program available at the nearest healthcare center are: child immunization program start from 0 to 12 years, polio eradication program, H1N1 स्क्रीनिंग प्रोग्राम. तो इम्यूनाइजेशन हमें हर टाइप की वैक्सीन लेनी चाहिए. वो पोलियो की है, H1N1 की है, सब वैक्सीन हमें लेनी चाहिए. हेल्थ के लिए रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है. एज के हिसाब से दिया है कि इनफैक्ट इम्यूनाइजेशन कब लेनी चाहिए. तो 6 वीक टू 9 वीक, जब बॉर्न होता है तब से पोलियो और BCG लेनी चाहिए. 6 वीक टू 9 वीक का होता है तो DPT टिटेनस की वैक्सीन होती है. 9 to 12 मंथ में बूस्टर डोजेस, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस AB एक्सेट्रा वो वैक्सीन लेनी चाहिए. इन मेजर एरियाज ट्यूबरकुलोसिस केसेस आर रिपोर्टेड टू लार्जर नंबर विच इज अ मेजर कंसर्न. How many times did you fall ill in last 1 year? What are the illness? A. Think of one change you could make in your habit in order to avoid any of most of the above illness. B. Think of one change you would wish you in your surrounding in order to avoid any of most of the above illness. तो आंसर है द illness was 2 to 3 times common cold occurred in a year. A. One change I would make in my habit in order to avoid the above illness is that I would take proper diet rich in vitamin C, would avoid to cold food. तो हमें क्या करना पड़ेगा? अच्छी हैबिट रखनी चाहिए क्योंकि बीमारी ना हो. इसके लिए हमें विटामिन C वाले फूड खाने चाहिए और कोल्ड फूड है उसको अवॉइड करना चाहिए. द सराउंडिंग शुड बी नीट एंड क्लीन. हमारे आसपास स्वच्छता रखनी चाहिए. ठीक है. A doctor, nurse, health worker is exposed to more sick people than other in community. Find out how he avoid getting sick herself, himself. A doctor, nurse, health worker, when exposed to sick people, they keep their nose and mouth covered, take care of hygiene, wash hand with soap before drinking water or eating food. They use mask, gloves, etc. to avoid to direct contact with the person suffering from infectious disease. तो वो क्या करते हैं सिक पीपल, डॉक्टर, नर्स या हेल्थ वर्कर जो भी होते तो अपना नोज कवर रखते हैं, वो माउथ कवर रखते हैं, टेक केयर हाइजीनिक फूड लेते हैं, फिर हैंड वॉश करते हैं, क्लीन वाटर लेते हैं. ठीक है. मास्क, ग्लोव्स वो यूज़ करते हैं और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट को अवॉइड करते हैं. ठीक है. कंडक्ट अ सर्वे इन योर नेबरहुड. फाइंड आउट what 3 most common disease. Suggest 3 steps could be taken by your local authorities to bring down incidence of this disease. Common disease in neighborhood. तो मलेरिया, टाइफाइड एंड कफ एंड कोल्ड वो कॉमन डिजीज है. स्टेप बाय ब्रिंग डाउन डिजीज स्प्रेड. तो मलेरिया होता है क्लीन सराउंडिंग. हमारे आसपास क्लीन रखना चाहिए क्योंकि मॉस्किटो ना हो तो मलेरिया से हमें प्रिवेंशन मिल सकता है. ठीक है. टाइफाइड तो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर क्लीन वाटर पीना चाहिए. कफ एंड कोल्ड चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन उसकी वैक्सीन लेनी चाहिए.
A baby is not able to tell his her caretaker that he is sick. What would help us to find out that the baby is sick? What is the sickness? आंसर है ए symptoms like body temperature, fever, cough, cold, lose motion non-stop, crying improper, or no food intake etc. would help her find that the baby is sick. B. The symptoms could help us find out the sickness of body. Under which of the following condition is person most likely to fall sick? A. When she is covering from malaria, when she has covered from malaria and is taking care of someone suffering from chickenpox. C. When she is on 4-day faster after recovering from malaria and taking care of someone suffering from chickenpox. Why? तो हमारा ऑप्शन सी when she on 4 days last after covering from malaria and is taking care of someone suffering from chickenpox, as a person is not taking proper diet which is required for her proper health and healing of body. Her chances of getting chickenpox also high as her body's immunity has lowered. ठीक है, तो जो 3 कंडीशन दी है ए बी सी में मोस्टली जब बॉडी सीक होती है, ज़्यादा फीवर ऐसा कुछ रहता है, तो प्रॉपर हेल्थ और हीलिंग बॉडी, तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें उसके प्रॉपर डाइट देना चाहिए. ठीक है, और जब उस टाइम हमारी बॉडी सीक होती है तो हमें प्रॉपर डाइट की ज़रूरत होती है क्योंकि इम्यूनिटी डाउन होती है. तो प्रॉपर डाइट लेते हैं तो जल्दी से ठीक हो जाता है. क्वेश्चन 6. अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर यू मोस्ट लाइकली टू फॉल sick? When you are taking examination, when you have traveled by bus and train for 2 days, when your friend is suffering from measles. Why? तो आंसर ऑप्शन सी when your friend is suffering from measles as it is an infectious disease. ठीक है, हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए. थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो. सो स्टूडेंट, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू.